Hello everyone. So in the series of ClickHouse where we are going to create three videos, the first which is introduction of ClickHouse. In the second video, we will talk about how our write flow will look like in the ClickHouse. And in the third video, we will talk about how our read flow will look like. So let's begin with our first video, which is introduction of ClickHouse. Okay, so before I start our session, let me ask one very basic question. Because what I used to follow is before learning anything new, I try to ask very basic question. What, why, and how? And trust me, guys, if you will follow the same pattern, you will see a very big or very positive shift in your life. So let's begin with what. What is ClickHouse? That means something which I'm expecting like an introduction part or definition part. So what is ClickHouse? ClickHouse is a open source column-oriented database built for analytics at a massive scale, processing billions of rows in milliseconds. Okay, definition looks interesting. It seems it's very fast, but tell me something more. Like why we need this? To understand why part, let's go some year back. So if I will talk about a little bit history of ClickHouse. So ClickHouse was created by a Russian company uh, called Yandex in 2016, and Yandex runs Yandex.Metrica, which is one of the largest web analytics platform in the world. And you know what? They were processing trillions of rows, and their existing system, they were you know they were facing lots of problems because their existing system were simply not fast enough. And that was the time when they realized like, okay, now time came where they need to build something. And that was the time when ClickHouse came into the picture. And in 2021, the same ClickHouse, it became a fully independent open source project. And if I will talk about 2026, that means today scenario, lots of companies which is having lots of companies, I mean to say big companies, which is having a very massive amount of data, like Uber, Cloudflare, Spotify. In Movie itself, they are using ClickHouse in production. Getting my point? So ClickHouse is not something like a concept. It is already running in the production, and that is also a very big product-based companies. Okay, looks interesting. बट टेल मी समथिंग विच इज मोर रियल वर्ल्ड बेंचमार्किंग. मुझे ये थ्योरी समझ में नहीं आती है, मुझे थोड़ा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताओ कि यार फास्ट है बट कितना फास्ट है. सो लेट मी टेल यू वन नंबर विच इट्स नॉट लाइक I pick this number something from somewhere from Google or somewhere else. It's something like which I tested, I derived, and I came up with this number. So imagine you are building a dashboard for an advertising platform, and your dashboard need to answer like what is the total revenue per publisher for last 30 days. And your table has around 9.5 billion rows, 150 columns, 370 GB of data per day. Massive amount of data. Now, if you will try to run the similar kind of query on your traditional database like MySQL, Postgres, and all, the query would take minute or kind of timeout will happen. And when I ran the similar set of queries on Databricks Delta Table, which is kind of a modern data platform, we measured around it took 5,000 plus ms on average, if I will talk about. And when I ran the same set of queries on ClickHouse, guys, I'm telling you, I was surprised. It took only 314 millisecond, 314 ms on average it took only. That means it's really fast, almost 70x faster than Databricks Delta Table. Now, looks very interesting. Let's talk about a little bit more. So, okay, if I will talk about what was the issue in the traditional databases and why our traditional databases are slow for analytics. So first we need to understand what is analytics first of all. Okay, अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपके पास दो टाइप के डेटा फ्लो या वर्कलोड होते हैं. एक जो कि हम ट्रांजैक्शनल वर्कलोड बोलते हैं, एंड सेकंड विच इज एनालिटिकल वर्कलोड. सो ट्रांजैक्शनल वर्कलोड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को कुछ पेमेंट करा, दैट इज ट्रांजैक्शनल, राइट? जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, कार्टिंग सिस्टम हो गया, पेमेंट सिस्टम हो गया, ये सारे का सारा जो आपका फ्लो है, वर्कलोड है, इसमें आपका ट्रांजैक्शनल डेटा फ्लो होता है. एनालिटिकल फ्लो का मतलब होता है कि आप डेटा इंसाइट लेना चाहते हो, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर आप कुछ क्वेरी रन करना चाहते हो और आपको चाहिए कि यार इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया का रेवेन्यू कितना है लास्ट वन ईयर का, समथिंग लाइक दैट. तो जब इस टाइप के आपके एनालिटिकल क्वेरीज होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल वर्कलोड. ओके, so जब भी आपके पास एनालिटिकल वर्कलोड आए, दैट मींस समथिंग व्हिच यू वांट टू रन लाइक अ सेलेक्ट सम रेवेन्यू फ्रॉम एड इवेंट्स. आपको रेवेन्यू का समेशन चाहिए या आपको इंडिया का टोटल रेवेन्यू चाहिए इन लास्ट वन ईयर और समथिंग लाइक दैट. इस टाइप की जब भी एग्रीगेट क्वेरी व्हिच इज यूज्ड फॉर एनालिटिकल पर्पस, जब भी आपको चाहिए होती है, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो आपके होते हैं ना, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस एंड ओरेकल एंड ऑल, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग. उसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि why part, why our traditional databases, they are
नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉर एनालिटिकल क्वेरी। सो हमें समझने की ज्यादा जरूरत है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज रो बेस्ड एंड व्हाट इज कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके एक सेकेंड, हाँ। सो जो भी आपके ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं ना, जैसे आपका हो गया माई एसक्यूएल या ओरेकल, पोस्टग्रेस, ये जितने भी डेटाबेसेस होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रो बेस्ड होते हैं, रो स्टोर होते हैं। अब क्या रो स्टोर होता है, आई विल टॉक अबाउट। और रो स्टोर का मतलब होता है कि जो आपका एक्चुअल में डेटा स्टोर होगा ना, वो आपका रो बाई रो होगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है एड इवेंट करके, जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, यूजर आईडी, पब्लिशर, कंट्री, रेवेन्यू एंड इवेंट टाइम। अगर आप देखोगे इसमें, इस टेबल के अंदर में मैंने 4 रिकॉर्ड्स बेसिकली इंसर्ट करे हैं। ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। नाउ अब रो रो स्टोर जो होता है, रो बेस्ड जो आपका डेटाबेसेस होते हैं, जैसे माइस्क्वेल या पोस्टग्रेस या जितने भी ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं, वो एक्चुअल में आपके इस डेटा को रखते कैसे हैं। तो देखो, लेट सपोज ये आपका डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क है आपके, आपका मेमोरी है। दैट मीन्स कि ये जो फर्स्ट रो है, राइट, ये आपका एक साथ रखा जाता है। लेट सपोज ये आपका फर्स्ट रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, वन, देन फिर अदर इन्फॉर्मेशन, देन 0301, ठीक है। तो ये रो आपका 1 हो गया। रो 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, अब ये स्टार्ट कहां से हुआ था, लेट सपोज 0 बाइट से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ का जो इंडेक्स है, लेट्स सपोज 10 इंडेक्स है। अब 10 के बाद क्या होगा, सेकंड रो आपका इंसर्ट होगा। तो ये आपका मेमोरी में एज इट इज उठ करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, आपका जो रो होता है ना, रो स्टोर में आपका रो एक साथ आपका क्या होता है, स्टोर होता है रो स्टोर डेटाबेसेस में। ओके, ठीक है, बट फर्क क्या पड़ता है इससे। अब देखो, अब समझते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपको ये वाली क्वेरी रन करानी है, विच इज नथिंग बट एनालिटिकल क्वेरी, बिकॉज अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको समेशन चाहिए। समेशन किसका चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम एड इवेंट्स। रेवेन्यू चाहिए मतलब आपको ये 100 चाहिए था, ये 200 चाहिए था, 150 चाहिए था, 300 चाहिए था, और उसका समेशन आपको रिटर्न करना था। वेरी बेसिक। बट इसको अगर आपको रन कराना पड़े ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में, तो इंटरनली वो क्या करेगा भाई, उसने डेटा स्टोर करा है कहीं पे, बट उसने कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम लिखा होगा ना, जो डेटा फेच करके लेके आता होगा। और वो डेटा फेच कैसे करेगा, सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा रीड करना, डेटा स्कैन करना, और जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा, बोले तो रेवेन्यू वाले पोर्शन पे जाएगा, वो लिख लेगा 100, ठीक है। सिमिलरली ये रो आपका पूरा का पूरा स्कैन हो गया, फिर वो ट्राई करेगा नेक्स्ट रो को रीड करना या स्कैन करना, जैसे ही 200 आएगा, 200 ऐड करेगा। ऐसे ये करता चला जाएगा और लास्ट में ये समेशन जो है रिटर्न कर देगा। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, तो इस टाइप के डेटाबेसेस में या रो स्टोर वाले डेटाबेसेस में, हमें अगर एक कॉलम को रीड करना है या उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें अननेसेसरी सारे के सारे कॉलम्स को स्कैन करना पड़ रहा है। और ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता है कि भाई 100 जो है ना, वो डेटा के या हमारे डिस्क के किस किस इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो एनीवेज हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाई 1 ही स्कैन करना पड़ेगा। अब इससे घाटा क्या है, इससे घाटा ये है कि भाई अगर आप ज्यादा डेटा स्कैन करोगे, दैट मीन्स कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं तो डाउनग्रेड होगा ना, राइट। तो ये आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हिट कर जाता है। और ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली अगर आप एनालिटिकल क्वेरी रन कर रहे हो। अगर यहीं पे अगर आप बोलते कि यार मुझे ये क्वेरी रन करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टी वन टेबल, अब आप बोलोगे इसमें क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार, मतलब मैं सारे कॉलम को रीड करना चाहता हूँ। तो यार सारे कॉलम को रीड करना चाहता हूँ, तो एनीवेज आप चाहे रो स्टोर में जाओ या आप कॉलम स्टोर में जाओ, किसी भी स्टोर में आप जाओगे, आपको स्कैन तो पूरा ही करना है। तो यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बट जहां पे आपको कुछ कॉलम ही रीड करने हैं, तो आप अननेसेसरी सारे कॉलम क्यों रीड करोगे, ठीक है। तो अगर मैं सेम एग्जांपल में बात करूं, अगर मैं रो स्टोर वाले पैटर्न पे चलता, दैट मीन्स कि 5 कॉलम में आई वाज इंटरेस्टेड इन 1 कॉलम ओनली, दैट मीन्स कि अराउंड 80% जो आपका डिस्क का जो मैंने डिस्क रीड करा है ना, दैट इज वेस्टेज, दैट इज नो यूज फॉर मी। Only 20% is useful for me. You are getting my point? That's why traditional databases they are struggling a lot, especially on analytical query. ठीक है ना? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सो हमें ये समझना है कि यार ट्रेडिशनल डेटाबेसेस पे एनालिटिकल क्वेरी क्यों बहुत ही गंदा परफॉर्म करती है। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन यही है ना कि यार चूंकि एनालिटिकल क्वेरी में हम बेसिकली किसी कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कॉलम स्टोरेज डिजाइन का यूज करें, क्यों ना हम कॉलम स्टोरेज डेटाबेसेस की तरफ जाएं। सो कॉलम स्टोरेज डेटाबेसेस क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। अगर सेम डेटा को मैं ना कॉलमनर स्टोरेज पे अगर इंसर्ट करता रखता, तो मैं कैसे रखता, ये देखो आप। सो कॉलमनर स्टोरेज का मतलब ये होता है कि भाई ये जो आपका एक कॉलम है ना, ये पूरा कॉलम, ये डेटा आपका एक जगह पे रहेगा। ये जो है ना आपका पब्लिशर, वो आपका एक जगह पे रहेगा। सिमिलरली आपका जो कंट्री है वो एक जगह पे रहेगा। अब एक जगह पे रहेगा, दैट मीन्स कि आपका ये रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं एक जगह पे डिस्क में रखा होगा। अब एक जगह पे रखा होगा, दैट मीन्स कि आपको केवल और केवल यही रीड करना है। तो एग्जैक्टली जो आपका क्लिक हाउस है ना, क्लिक हाउस डेटाबेस, दैट इज कॉलमनर ओरिएंटेड डेटाबेस। दैट मीन्स कि जो आपका डेटा वो स्टोर करेगा, वो कैसे करेगा, वो आपका कॉलम वाइज करेगा। तो देखो ये है आपका एग्जैक्टली क्लिक हाउस आपका डेटा कैसे स्टोर करता है। तो जैसे यूजर आईडी डॉट बिन करके एक फाइल बनाता है वो, और यूजर आईडी की सारी इंफॉर्मेशन वो एक ही फाइल में स्टोर करता है। सिमिलरली पब्लिशर डॉट बिन करके एक फाइल बनाता है, इसमें सारा पब्लिशर की इंफॉर्मेशन एक ही फाइल में स्टोर करता है। दैट मीन्स कि एक कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे रहती है। अब अगर हम बात करें कि अगर मुझे सेम क्वेरी रन करानी हो, सेलेक्ट सम रेवेन्यू फ्रॉम एड इवेंट, दैट मीन्स कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रेवेन्यू पोर्शन, और इसका मतलब मुझे बस केवल यही फाइल रीड करना है, इसी का समेशन करना है, और रिजल्ट क्या करना है,
आउटपुट एज आउटपुट रिटर्न कर देना है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो दैट मीन्स कि मैंने सारे कॉलम को तो रीड करा ही नहीं, मैंने सारे फाइल्स को तो मैंने टच ही नहीं करा, मैंने केवल वही फाइल टच करे जो मेरे काम की थी। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपका क्लिक हाउस है या बेसिकली कॉलमनर ओरिएंटेड डेटाबेसेस जितने भी होते हैं वो आपके काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली अगर आप एनालिटिकल क्वेरी या इस टाइप की क्वेरी रन करना चाहते हो तो। आई थिंक इतना बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं। ठीक है, तो कॉलमनर स्टोरेज के बारे में हमने बात कर ही लिया ऑलरेडी। ओके, अब देखो, अब चूंकि ये कॉलमनर स्टोरेज डेटाबेसेस है आपका क्लिक हाउस, तो इससे फायदा क्या है? देखो, एक तो ये फायदा है ही है कि यार ठीक है, एक जो आपके कॉलम है ना, कॉलम की इन्फॉर्मेशन वो एक ही जगह पे रहती है। अब इसकी वजह से आप चाहो तो कुछ और एक्स्ट्रा फायदा भी करा सकते हो। एक्स्ट्रा फायदा क्या करा सकते हो भाई? जब आपको पता है कि जो भी आपके यूजर आईडी है वो एक ही फाइल के अंदर में है, और यूजर आईडी है दैट मीन्स कि अगर ये इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, मतलब सबका डेटा टाइप क्या है? सेम है। इसका मतलब जब आप एक्चुअल में डिस्क में अगर आप अपना डेटा रखना चाहते हो ना, तो ये डेटा एग्जैक्टली अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट में ना रख करके आप जैसा चाहो कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक रन करा करके बहुत ही कंप्रेस करके अपने डेटा को रख सकते हो। अब उसका फायदा क्या होगा? जैसे ही आप बहुत ही कंप्रेस करके डेटा को रखोगे, वो डिस्क में स्पेस कम लेगा। दैट मीन्स कि जो आपका राइट फ्लो है ना, राइट फ्लो, इसमें आप बोल रहे हो कि यार आप बहुत अच्छा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाया और लॉजिक लगा करके अपने डेटा को कंप्रेस करके रखा। ठीक है, लुक्स इंटरेस्टिंग। बट आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? मतलब अगर हमको राइट में इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर लगा करके डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं सेम हमें रीड वाले फ्लो में हमें कहीं ना कहीं उसको पे करना पड़ेगा, राइट? मतलब रीड वाले फ्लो में अगेन मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा? अनकम्प्रेस करना पड़ेगा, फिर उस फॉर्मेट में रीड करना पड़ेगा। चैलेंजिंग है मेरे लिए, राइट? बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्लिक हाउस जो डेटा स्टोर करता है ना, क्लिक हाउस कभी भी जब आप क्लिक हाउस का रीड और राइट फ्लो पढ़ोगे ना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें कि भले ही आपका जो है बहुत ही कंप्रेस करके फाइल को रखता है, बट इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप पूरा का पूरा डेटा जो है ना वो रीड नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, कुछ पोर्शन कुछ चंक्स ही केवल रीड करते हो। तो एनीवेज बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ। ओके, तो हमने समझा कि यार अगर आपका कॉलम, एक कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि हम उसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा कंप्रेस्ड लॉजिक लगा सकते हैं। जो कंप्रेशन का जो अच्छा अच्छा लॉजिक्स है ना, राइट, वो हम लगा सकते हैं इफिशियंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं कॉल आउट कर सकता हूं, जैसे लेट सपोज अगर आपका इंडिया है, यूएस है, यूके है, ये सब आपके जो कंट्रीज है, अगर आप एज अ स्ट्रिंग रख रहे हो, तो एक्चुअली आपका क्लिक हाउस क्या करता है? देखता है ठीक है यार ये सारा का सारा स्ट्रिंग है, बट जो आपका कंट्री है, राइट, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज होंगी? आप बोलोगे यार 200 प्लस कुछ होंगी, लेस देन 300 कंट्रीज। तो इसका मतलब इसको हम चाहें तो इनकोड करके भी रख सकते हैं, लाइक यूएस को हमने 0 बना दिया, इंडिया को हमने 1 बना दिया। दैट मीन्स कि यूएस जब जब आएगा आप उसको 0 0 स्टोर करोगे। अब इसका फायदा क्या हुआ यार? ये पूरा का पूरा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, वो एज अ स्ट्रिंग कितना वैल्यू ले रहा था, कितना स्पेस ले रहा था, जब हमने उसको इनकोड कर लिया, राइट, एज अ 0, भाई वो कितना कम स्पेस लेगा। तो काइंड ऑफ व्हाट आई मीन टू से इज कि इस टाइप की बहुत अच्छी अच्छी कॉम्प्रेशन वाली जो एल्गोरिदम्स हैं, वो यूज करके डेटा का जो कॉम्प्रेशन होता है वो काफी अच्छा क्लिक हाउस वाले करते हैं। और अगर मैं इसका एक रियल एग्जांपल बताऊं, राइट, तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अगर आपका डेल्टा टेबल है, और डेल्टा टेबल में लेट सपोज आप बोलते हो कि यार आपका जो टेबल की साइज है लेट सपोज 1 TB है, और अगर इसको आप क्लिक हाउस में माइग्रेट करोगे ना, 50% रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं हम बात कर रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली देखा हुआ है, अराउंड 500 GB आपको साइज दिखेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि क्लिक हाउस जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस भी अच्छा करता है डेटा को। चलो, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा OLTP वर्सेस OLAP वर्कलोड के बारे में बात करते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वर्सेस OLAP एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, OLTP और OLAP वर्कलोड क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। OLTP वर्कलोड का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा फ्लो हो रहा है मार्केट में, शॉपिंग कार्ट, यूजर प्रोफाइल, पेमेंट कर रहे हो कुछ आप, जहाँ पे यू नीड फास्ट सिंगल रो लुकअप, फ्रिक्वेंट अपडेट हो रहा है, उस केस के लिए MySQL और ट्रेडिशनल डेटाबेसेस इज फैंटास्टिक। बट जहाँ पे आपका जो वर्कलोड है वो ओलैप टाइप का है, मतलब एनालिटिकल क्वेरी आप रन करा रहे हो, कुछ डैशबोर्ड पे काम कर रहे हो, कुछ एग्रीगेट कर रहे हो, कुछ बिलियंस ऑफ रोज को आप बेसिकली स्कैन कर रहे हो। सो ऐसे केसेस में ओलैप सिस्टम, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं यू कैन गो विद क्लिक हाउस। ठीक है, तो आई थिंक OLTP सिस्टम वर्सेस ओलैप सिस्टम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का जो वर्कलोड है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नाउ अगर हम बात करें कि कब हमें ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की तरफ जाना चाहिए, कब हमें क्लिक हाउस की तरफ जाना चाहिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस। पर्पस क्या है? अगर आप बोलोगे कि यार आपका पर्पस जो है एज अ ट्रांजेक्शनल डेटा को प्रोसेस करना है, दैट मींस यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू गो विद ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, MySQL और ओरेकल एंड सो ऑन। अगर आपका पर्पस है कि नहीं यार मुझे एनालिटिकल क्वेरी की तरफ जाना है, मुझे डैशबोर्ड क्रिएट करना है, देन क्लिक हाउस इज अ गुड कैंडिडेट फॉर यू। नाउ व्हाट इज योर क्वेरी टाइप? अगर तुम्हारा क्वेरी टाइप पॉइंट लुकअप है, मतलब डायरेक्टली किसी एक रो को लुकअप करते हो, देन MySQL और OLTP जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। बट अगर आपका जो क्वेरी टाइप है वो बहुत ही एग्रीगेट बेसिस पे है, मतलब आप कुछ डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स, तो उसके लिए फिर आपको क्लिक हाउस की तरफ जाना चाहिए। सिमिलरली डेटा वॉल्यूम की तरफ, कम डेटा पे अगर आपको
कुछ क्वेरी रन करानी है देन यू कैन गो विद द मिलियन ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, बहुत ही बिलियंस ऑफ रोज पे अगर आपको क्वेरी चलानी है देन यू कैन गो विद द क्लिक हाउस। राइट फ्लो की बात करते हैं, अगर आपका कोई यूज केस ऐसा है जहां पे आप फ्रिक्वेंटली अपडेट कर रहे हो, देन आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आप एक एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो या एक एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो, क्लिक हाउस इज नॉट मेड फॉर दिस। उस केस में आपको OLTP सिस्टम की तरफ ही जाना चाहिए। क्लिक हाउस इज स्पेसिफिकली फॉर बल्क अपलोड्स, बल्क बल्क में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, उसके लिए है। रीड की बात करें तो अगर आपको कुछ रोज को रीड करना है देन यू कैन गो विद OLTP सिस्टम्स। अगर आप मिलियंस ऑफ रोज रीड करना चाहते हो इन वन गो देन यू कैन गो विद क्लिक हाउस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि कब OLTP सिस्टम यूज होता है, कब OLAP सिस्टम यूज होता है, तो OLTP is majorly we use in the in our app backend systems, while our ClickHouse or OLAP system we are using in the dashboard and reporting systems. Okay, so one very common mistake which you will see in the market, like using ClickHouse like a MySQL, it's not designed for frequent single row insert, update or complex joins. Okay, so if you are using ClickHouse for OLTP kind of system, that means you are not leveraging the ClickHouse power. Okay. Okay guys, so I think ये point सबको clear हो गया होगा. Now let me talk about what are the 7 things that makes ClickHouse fast. ClickHouse को इतना fast, मतलब कौन से ऐसे 7 points हैं जो बनाते हैं. तो अगर मैं पहले बात करूं, the first point which is columnar storage. इसकी वजह से फास्ट क्यों होता है ClickHouse? बिकॉज आपका मेजर ऑफ जो डेटा होता है ना, वो आप स्कैन ही नहीं करते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉलमनर स्टोरेज डेटाबेस. ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन. नाउ सेकंड पॉइंट, कंप्रेशन. अब कंप्रेशन की वजह से ClickHouse फास्ट क्यों है? क्योंकि कंप्रेशन आपका इतना अच्छा इसमें परफॉर्म होता है. अच्छा क्यों परफॉर्म होता है? क्योंकि आपका कॉलमनर ओरिएंटेड डेटाबेस है. इसकी वजह से कंप्रेशन अच्छा होगा. कंप्रेशन अच्छा होगा दैट मीन्स कि आप जो डिस्क में डेटा रख रहे हो ना, बहुत ही कम जगह पे आपका ज्यादा डेटा आएगा. बट अगर अगर कम जगह पे ज्यादा डेटा आ रहा है, दैट मींस आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार मेरा कहीं ना कहीं रीड फ्लो जो होगा वो इंपैक्ट करेगा. बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपका जो जो थर्ड पॉइंट है, राइट, वेयर वी आर कॉलिंग अबाउट, वेयर वी आर कॉलिंग लाइक अ स्पार्स इंडेक्स, तो ClickHouse एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा काम करता है. ClickHouse क्या करता है, जैसे लेट सपोज आपके पास एक बुक है. बुक में अगर आपके पास लेट सपोज 100 पेज है, और अगर आप चाहते हो कि यार मुझे चैप्टर सर्च करना है और उसका एक इंडेक्स मेंटेन है, अगर एक चैप्टर 2-2 पेज का है, दैट मीन्स कि आपके पास टोटल 50 इंडेक्सेस बनेंगे, ठीक है. बट अगेन अगर मैं बोलूं कि नहीं यार, जो मेरे इंडेक्सेस बने ना, वो 2-2 पेजेस के नहीं बनने चाहिए, वो मेरे कुछ लेट सपोज 50-50 पेजेस के बनने चाहिए. इसका मतलब कि आपका 100 पेज का अगर बुक है, इसका मतलब दो ही केवल आपके क्या बने, दो ही इंडेक्स बने. तो अगर आपका जो साइज होगा ना, चैप्टर का जो साइज होगा, अगर वो बड़ा होगा, राइट, तो इसका मतलब इंडेक्सेस कम बनेंगे. इंडेक्सेस कम बनेंगे, इसका मतलब जो आप जब रीड फ्लो कर रहे हो ना, तो एंड दैट टाइम आल्सो यू आर मेकिंग श्योर कि यार मैं एक ही चैप्टर पढ़ूंगा. जब एक ही चैप्टर पढ़ूंगा, दैट मीन्स कि आपका जो बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ डेटा है उसी को आप पढ़ने जा रहे हो, और छोटा अमाउंट ऑफ डेटा पढ़ने जा रहे हो तो उसी को केवल अनकंप्रेस करना है. तो इसकी वजह से ClickHouse इज वेरी फास्ट. सो कंप्रेशन की वजह से. और स्पार्स इंडेक्स, इंडेक्स अगर नहीं समझ में आया ना, एनीवेज वी विल एक्सप्लेन दिस इन द राइट फ्लो एंड रीड फ्लो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ClickHouse. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज पार्टिशनिंग. सो देखो, पार्टिशनिंग की वजह से भी हमें ClickHouse में बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ClickHouse में क्या होता है ना कि आपका पार्टिशनिंग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर आपका पार्टिशनिंग हुई है, दैट मींस कि अगर आप क्वेरी जो आप लिख रहे हो, अगर मार्च का डेटा अगर आप रीड करना चाहते हो, दैट मींस कि जैन या फैब का जो डेटा है वो तो टच भी नहीं होगा. ओके, टच नहीं होगा, इसका मतलब आपने कम डेटा को स्कैन करा, कम डेटा स्कैन करा, मतलब आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा मिलेगा, काफी एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलेगा. ठीक है. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं विच इज हेल्पिंग अस to get the results very fast in ClickHouse. Vectorized execution, parallel processing and merge tree engine. Merge tree engine is very very important. अब देखो, merge tree engine नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, आपका जो आप डेटा इंसर्ट करते हो ना ClickHouse में, उसको एक बैकग्राउंड का प्रोसेस है जो आपका क्या करता है, मर्ज करता रहता है. और मर्ज क्यों करता है? बिकॉज मर्ज इसलिए करता है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि जो आपका एक चैप्टर का जो साइज है ना, बोले तो स्पार्स इंडेक्स, वो जो आपका एक चैप्टर का साइज है वो अच्छा रहे. ऐसा नहीं कि आप जो एक चैप्टर जो बना रहे हो ना, आप एक पेज का एक चैप्टर बना रहे हो, नहीं. आपको हमेशा जो एक चैप्टर बनाना है वो इतने पेज का बनाना है, अराउंड 8192 रोज का आपका एक चैप्टर बनेगा, विच वी आर कॉलिंग एज अ ग्रैनुअल. ठीक है, तो इसके बारे में और पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रीड या राइट वाले फ्लो वाले वीडियोस में. बट आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ClickHouse तो समझ में आ गया होगा, राइट? ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय.